my dear student, welcome back to my channel Education. মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আজি মই তোমালোকক পঢ়াবলৈ লৈছো সপ্তম শ্ৰেণীৰ হিন্দীৰ যেটো 3 নম্বৰ পাঠ আছে। হেতু আজি মই তোমালোকক অলপমান কি কোৱা আছে পাঠটোত সেইখিনি মই তোমালোকক বুজাই দিম আৰু প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ তোমালোকক মই দি দিম। গতিকে বলাচোন আমি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো। পাঠটোৰ নাম হৈছে এক তেজস্বী और দয়াবান বালক। তেজস্বী মানে হৈছে সাহসী, এজন সাহসী আৰু দয়াবান, যোনে দয়া কৰে, বেলেগৰ ওপৰত দয়া কৰে, তেওঁক দয়াবান বুলি কোৱা হয়। চাবা মই গোটেই পাঠটো তোমালোকক পঢ়ি নিদিও, তোমালোকে পঢ়ি লবা, কিন্তু ইয়াত কি কি কোৱা হৈছে, কি আছে থুলমূলকৈ মই তোমালোকক বুজাই দিবলৈ ওলাইছো। চাবা, बीरेश्वर एक साहसी बालक था। उत्तरी कोलकाता के एक वकील के परिवार में 12 जनवरी 1863 में उसका जन्म हुआ था। माने बीरेश्वर হৈছে এজন সাহসী ল'ৰা আছিল। কলকাতাৰ উত্তৰী কলকাতাত উকিল পৰিয়ালত 12 জানুৱাৰী 1863 চনত তেখেতৰ জন্ম হৈছিল। उसके पिता का नाम था विश्वनाथ दत्त तथा माता का नाम था भुवनेश्वरी देवी था। लोग प्यार से उसे बिले नाम से भी पुकारते थे। माने बीरेश्वरक बिले বুলি সকলোৱে মৰমত মাতিছিল। एक दिन की बात है, बीरेश्वर एक मेला देखकर कुछ दोस्तों के साथ लौट रहा था। अचानक एक घोड़ा गाड़ी तीव्र गति से आ गई। तीव्र गति माने एकेबारे स्पीडत खरखेदाকৈ আহিছিল और एक छोटा बच्चा गाड़ी से नीचे आ गया। माने घोड़ा गाड़ीखনৰ তলত আহি গল। सभी देखते ही रह गए। बीरेश्वर ने अपने साहस का परिचय देते हुए बड़ी फुर्ती से उस बच्चे को गाड़ी के नीचे से निकाला। बीरेश्वरे সকলোৱেতো চাই ৰল, কিন্তু बीरेश्वरे নিজৰ সাহসিকতাৰ পৰিচয় দি কি কৰিলে, খুব ফূৰ্তিৰে সেই বাচ্চাটোক গাড়ীৰ তলৰ পৰা উলিয়াই আনিলে। सभी ने उसकी प्रशंसा की और সকলোৱে তেওঁৰ প্ৰশংসা কৰিলে। बालक बीरेश्वर के मन में दया का भाव भरा हुआ था। माने তেওঁটো আগৰ পৰাই দয়াবান, সকলোকে সহায় কৰি ভাল পায়। उसमें एक विशेष आदत थी दान की। তেওঁৰ এটা বিশেষত্ব আছিল যে তেওঁ দান কৰি ভাল পায় মানুহক। जरूरतमंद को देखकर, जरूरतमंद माने जाय पाबलगिया, जिबिलाक कय माने पाबलगिया जरूरतमंद বুলি কৈছে। जरूरतमंद को देखकर अपने पिता की ही तरह वो भी कीमती वस्तु हो दान कर देता था। माने दुखिया बा যাৰ কিছুমান বস্তু দৰকাৰ হয়, দামী বস্তুবিলাক তেওঁ কি কৰে, দান দি দিয়ে, বেলেগক দি দিয়ে। यहाँ तक कि स्वयं के कपड़े भी আৰু নিজৰ কাপোৰবিলাকো দি দিয়ে। कभी कभार माँ इस कारण से उसे कमरे में बंद कर देती थी। माने माके এই কাৰণবিলাকৰ কাৰণে কেতিয়াবা তেখেতক रूमत बंद कर थैছিল। तब भी वो रास्ते से गुजरते हुए भिखारियों को बुलाकर खिड़की से कमरे का सामान दे देता था। তেতিয়াও যেতিয়া মানে रूमत माके बंद कर थैছিল, তেতিয়াও কিন্তু ৰাস্তাৰ পৰা ভিখাৰীবোৰক মাতি আনি তেখেতে নিজৰ বস্তুবোৰ দি দিছিল। ইমান তেওঁ মহান আছিল। मजबूर होकर माँ को कमरा खोल देना पड़ता था। मजबूर माने उपाय नापाय কি কৰিব, মাকে যেনেকে হলেও বন্ধ কৰি থলেওতো খিৰিকিৰে হলেও যেনেকে হলেও তেখেতে দি দিয়ে। তাৰপিছত दिन व दिन बीरेश्वर बड़ा होने लगा আৰু মানে দিন গল, তেওঁ ডাঙৰ হ'ব ধৰিলে। वह स्कूल भी जाने लगा আৰু স্কুলতো যাব ধৰিলে। माँ ने स्कूल में उसका नाम रखा नरेंद्रनाथ। बीरेश्वर नामটো যাই স্কুলত গৈ কি হল, नरेंद्रनाथ नाम राखिले। कोलकाता के विद्यासागर मेट्रोपॉलिटन स्कूल में उसकी पढ़ाई शुरू हुई। कलिकतार विद्यासागर नाমৰ স্কুলত তেওঁৰ পঢ়া লিখা পৰা আৰম্ভ হল। नरेंद्रनाथ लिखाई पढ़ाई में भी तेज था। माने लिखा पढ़ा तो তেওঁ খুবই আগবঢ়া আছিল। दोस्तों के साथ खेलकर समय बिताना उसे ज्यादा पसंद था। माने সমনীয়াৰ লগত, লগৰীয়াবোৰৰ লগত খেল ধেমালি কৰি সময়টো পাৰ কৰা তেখেতৰ ভাল লগা কাম আছিল। लेकिन जब भी पढ़ता था मन लगाकर पढ़ता था। কিন্তু যেতিয়া পঢ়িছিল, যদিও খেলা ধুলা ভাল পাইছিল, যেতিয়া পঢ়িছিল তেতিয়া যিখিনি সময় পঢ়িছিল মন লগাই পঢ়িছিল। धीरे धीरे पढ़ाई में उसकी रुचि बढ़ने लगी। তাৰপিছত চাবা, মই গোটেইখিনি নকওঁ। তেখেতৰ কলেজত যাই দৰ্শনা শাস্ত্ৰ নামৰ বিষয়টো তেখেতৰ প্ৰিয় হৈছিল। তাৰপিছত চাবা, पिताजी विश्वनाथ दत्त के आकस्मिक निधन के बाद परिवार की धार्मिक आर्थिक स्थिति बिगड़ गई। মানে যেতিয়া দেউতাকৰ বিশ্বনাথ দত্তৰ আকস্মিকভাৱে হঠাতে মৃত্যু হল, তেতিয়া তেখেতসকলৰ পৰিয়ালত মানে আৰ্থিক যেটো স্থিতি মানে
टका पैसार क्षेत्र हेतु माने अलग बेया हल। उस समय नरेंद्र बीए पास कर कानून की पढ़ाई कर रहा था। बीए पास जेतिया देउताक ढुकाले बीए पढ़ी तेतिया कानूनी पढ़ी আছিল वकील। फिर भी তাৰপিছত কি হল नरेंद्र को पढ़ाई छोड़नी पड़ी माने এনেকুৱা परिस्थितिर कारणे जेतिया टका पैसार अभाव हल तेखेते पढ़ा बाद दिले। फिर भी नरेंद्र ने अपना हौसला बनाए रखा और अपनी साधना व लगन के ज्ञानार्जन करता रहा। माने तथापिও যদি पढ़ा बाद दिसे तथापिও निजर साधना करी करी तेखेते ज्ञान अर्जन करिले। विश्व के जाने माने कोलकाता विश्वविद्यालय से सम्मानीय अध्यापक पद के लिए उसे आमंत्रित किया गया था। माने সকলতকৈ বিশ্বৰ সকলতকৈ ডাঙৰ কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় কলকাতাৰ সন্মানীয় অধ্যাপকৰ কাৰণে মানে পদটোৰ কাৰণে তেখেতক আমন্ত্ৰণ জনাইছিল মাতিছিল তেখেতক অধ্যাপক হ'বৰ বাবে। लेकिन गरीब लाचार और बेसहारे लोगों की सेवा करने के लिए उसने इस प्रस्ताव को ठुकराई दिया। सो किमान महान व्यक्ति আছিল गरीब दुखिया সকলক মানে সহায় কৰিবৰ কাৰণে তেখেতে যাতে সহায় কৰিব পাৰে এইবিলাক কামত সোমালে তো সহায় কৰিব নোৱাৰিব কামত ব্যস্ত থাকিব সেইকাৰণে তেখেতে কামৰ প্ৰস্তাৱটো পেলাই দিছিল। তেখেতে সদায় দুখীয়া সহায় কৰিছিল। 15 वर्ष की अवस्था में नरेंद्र ने गेरुआ वस्त्र धारण किया। संन्यास लेने के बाद वे स्वामी विवेकानंद नाम से लोकप्रिय हुए। 25 বছৰ বয়সত তেখেতে কি কৰিলে गेरुआ কাপোৰ পিন্ধিলে তেখেতে সন্ন্যাসী ললে কেতিয়াও আৰু বিয়া বাৰু নকৰাই। তাৰ পিছত তেখেতে স্বামী বিবেকানন্দ নামৰ নামটো ললে আৰু সকলোৰে মাজত তেখেতে প্ৰিয় হল। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল বাকিখিনি তোমালোকে পঢ়ি লবা কি আছে এতিয়া প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ চাই লও বুলা। তেখেতৰ তিনটা নাম আছিল স্বামী বিবেকানন্দৰ মনত ৰাখিবা। প্ৰথমতে নামটো কি আছিল বীৰেশ্বৰ। প্ৰথমৰ নামটো হৈছিল বীৰেশ্বৰ। তাৰ পিছত মাকে স্কুলত ৰখা নামটো হৈছিল নৰেন্দ্ৰ নাথ আৰু পিছত যেতিয়া তেখেতে সন্ন্যাসী ললে তেতিয়া তেওঁৰ নাম হলগৈ স্বামী বিবেকানন্দ। চাবা প্ৰথম প্ৰশ্ন আছে বীৰেশ্বৰ ने साहस का परिचय कैसे दिया। माने বীৰেশ্বৰে নিজৰ সাহসিকতাৰ পৰিচয় কেনেদৰে দিছিল। बीरेश्वर ने साहस का परिचय घोड़े गाड़ी के नीचे आए एक छोटे बच्चे को बसाकर दिया। बीरेश्वर ने बड़ी फुर्ती से उस बच्चे को गाड़ी के नीचे से निकाला था जिसको देख सभी उसकी प्रशंसा करने लगे। 6 नंबर प्रश्न नरेंद्र नाथ के गुरु कौन थे। गुरु से वह कैसे मिला। नरेंद्र नाथ के गुरु रामकृष्ण परमहंस थे। अपने मन में उत्पन्न प्रश्नों के उत्तर ढूंढते हुए एक दिन वे दक्षिणेश्वर काली मंदिर में रामकृष्ण परमहंस से मिले। 9 नंबर प्रश्न नरेंद्र नाथ ने संन्यास लेने के बाद क्या किया। माने नरेंद्र नाथे सन्यासी लोৱাৰ পিছত কি কৰিছিল। नरेंद्र नाथ ने संन्यास लेने के बाद पूरे भारतवर्ष की यात्रा की। गोटेই भारतवर्षৰ यात्रा কৰিছিল তেখেতে। यात्रा के दौरान विलासिता और प्रजा की दरिद्रता देखी अंधविश्वास एवं कुसंस्कार को भी देखा तथा वे मन ही मन इन चीजों से मुक्त एक शक्तिशाली भारत का सपना देखने लगे। 6 नंबर प्रश्न विश्व धर्म सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित हुआ था। वर्ष 1893 में अमेरिका के शिकागो शहर में विश्व धर्म सम्मेलन आयोजित हुआ था। 9 नंबर प्रश्न रामकृष्ण मिशन नामक संस्था का प्रधान उद्देश्य क्या है। उत्तर रामकृष्ण मिशन नामक संस्था का प्रधान उद्देश्य समस्त पृथ्वी के गरीब बेसहारे लोगों की सेवा करना है। 100 नंबर प्रश्न स्वामी जी ने युवा शक्ति का आह्वान किस लिए किया था। स्वामी जी को विश्वास था कि देश के युवा शक्ति देश के भविष्य को बदल सकते हैं, इसलिए तन मन से स्वस्थ होकर देश के भविष्य को बदलने की दिशा में काम करने के लिए उन्होंने पूरी युवा शक्ति का आह्वान किया था। 2 नंबर का चाबा बीरेश्वर रास्ते से गुजरते हुए भिखारियों को बुलाकर क्या करता था। उत्तर बीरेश्वर रास्ते से गुजरते हुए भिखारियों को अपना और घर का सामान दान में दे देता था। 6 नंबर स्कूल में विद्येश्वर का नाम क्या रखा गया था। बीरेश्वर जो बीरेश्वर होगा स्कूल में बीरेश्वर का नाम नरेंद्रनाथ रखा गया था। 9 नंबर प्रश्न संन्यास लेने के बाद नरेंद्रनाथ किस नाम से लोकप्रिय हुए। संन्यास लेने के बाद नरेंद्रनाथ स्वामी विवेकानंद नाम से लोकप्रिय हुए। 6 नंबर अमेरिकी मीडिया ने स्वामी जी को किस नाम से नवाजा था। अमेरिकी मीडिया के स्वामी जी को साइक्लोनिक हिंदू नाम से नवाजा था। अतिरिक्त प्रश्न मैं दी बीरेश्वर का जन्म कब और कहाँ हुआ था।
बिरेस्वर का जन्म कोलकाता के एक वकील के परिवार में 12 जनवरी 1863 ईंग में हुआ था। स्वामी विवेकानंद के माता पिता का नाम क्या था? उनके पिता का नाम था विश्वनाथ दत्त और माता का नाम था भुवनेश्वरी देवी। 2 नंबर, कॉलेज में पढ़ते समय नरेंद्र नाथ का प्रिय विषय क्या था? कॉलेज में पढ़ते समय नरेंद्र नाथ का प्रिय विषय था दर्शन शास्त्र। ख नंबर प्रश्न, कितने वर्ष की अवस्था में नरेंद्र ने गेरुआ वस्त्र का धारण किया था? माने किमान बছৰ বয়সত नरेंद्रই गेरुआ वस्त्र माने गेरुआ कापुर धारण करिছিল? 25 वर्ष की अवस्था में नरेंद्र ने गेरुआ वस्त्र का धारण किया था। 9 नंबर प्रश्न दिसो, एटु तुमालके निजे समाधान करिबा। कब स्वामी विवेकानंद जी का देहांत हुआ था? देहांत माने मृत्यु হৈছিল, तुमालके उलाई लिखिबा। তাৰপিছত চাবা কেইটামান সন্ধি ভাঙা দিয়া আছে। হিমালয় হিমযোগ আলয়, মেঘালয় মেঘযোগ আলয়, বিদ্যাৰ্থী বিদ্যাযোগ অৰ্থী, মহোৎসৱ মহাযোগ উৎসৱ, সূর্যোদয় সূর্য যোগ উদয়, বিদ্যালয় বিদ্যাযোগ আলয়, পূর্বোত্তর পূর্বযোগ উত্তর। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এইখিনি আছিল তোমালোকৰ হিন্দীৰ সপ্তম শ্ৰেণীৰ হিন্দীৰ 3 নম্বৰ পাঠটো। মই অসমীয়াত অকমান বুজাই দিলো আৰু প্ৰশ্নোত্তৰসমূহ দি দিলো। যদি আৰু কিবা তোমালোকৰ জানিবলগীয়া থাকে মোক কমেন্টত জনাবা, মই নিশ্চয়কৈ দিবলৈ তোমালোকক যত্ন কৰিম। আৰু আশা কৰিছো আজি ভিডিঅ'টোৰ পৰা তোমালোকে লাভান্বিত হ'বা। আকৌ এটি নতুন ভিডিঅ'তে লগ পাম। আজিলৈ ইমানেই।